good morning, my dear student friends. Today we'll start from where we have discontinued. The last class we have discussed about xylem and phloem. So different parts which are present or different types of cells which are present in xylem and phloem. So today we'll discuss about very important part from where you will get minimum 2 questions. Okay, and that part is anatomy of stem. Anatomy of dicot stem. Anatomy of dicot stem. Dicot stem. As it is a crash course program, we have not sufficient time for detailed discussion of an entire chapter, but those portions we will discuss from where there will be maximum questions. So anatomy of dicot stem. Similarly, there is anatomy of monocot stem, but monocot is less important. Dicot stem will be applied in future, later, in different parts of this chapter. So anatomy of dicot stem. If you cut the stem transversely, this is the soil surface. All of you know below the soil surface there is a root system. Above the soil surface there is shoot system. Yes or no? So if you cut the shoot or stem transversely, this is a dicot plant. If we cut the stem transversely like this, you will get a circular outline. Tissues are present in circular manner. Yes or no? And I had given one formula last class. And in every class, I will give some formula which will be beneficial for your NEET UG. Okay. So from all the botany, all the entire biology, not only botany, for biology I will give some formulas so that you can get the direct answer. And you will get direct 20 questions in the NEET, in the biology from that formula. So first listen, in this system you find different layers. So what are the layers? I had already told you. If you look it in a large view, if you enlarge it, what are the circular layers? First, the outer covering is epidermis. Epidermis. Just below the epidermis there is another layer called as a hypodermis. These circular layers only found after transverse section. Epidermis, then hypodermis, then next is general cortex or cortex. This is the cortex layer, cortex or cortical layer. Next is endodermis. Next layer is endodermis, then pericycle, and the center is known as pith. Okay, when I am explaining, just recall with me, recall in your mind. So first is epidermis, outer covering is known as epidermis. Epidermis, second layer is known as a hypodermis. And those who are new students, you can revise or back to the previous lectures, already it is available. Okay, so epidermis, hypodermis, then cortex or general cortex. Next is endodermis, and next is pericycle. These are the circular layers, pericycle, and the center is pith. This part is known as a pith. This part is known as pith. So already one formula I had told you, because question is asked, arrange the layer from outer to inner. Outermost is epidermis and innermost is pith or pericycle, we can say. So one formula I had told you. What is that formula? एक हाई क्लास इंग्लिश पेपर फॉर्मूला बताया था. एक से एपिडर्मिस, एक हाई से हाइपोडर्मिस, क्लास से कॉटेक्स, हाई क्लास इंग्लिश, एन से एंडोडर्मिस, पेपर, पेरिसाइकल एंड फिथ. Clear? So these layers you have to remember in order from outer to inner side. Like that in every chapter I will give 3 to 4 formula. But for that you have to wait and continuously attend the class. Okay? No need to read anything. Directly formula will give you 20 question. If you want NEET desperately, you will definitely get that. Okay? But in addition to that, the gap between pith and pericycle, if you look, this layer is pericycle. In between pith and pericycle, xylem and phloem are present. Xylem and phloem. Last class we have discussed xylem is the water conducting tissue and phloem is the food conducting tissue. So xylem, phloem are present in between pericycle and pith, and they are found in a bundle. They are found in a bundle together. How? I am showing one bundle. This is a bundle. This bundle is known as a vascular bundle because
inside this bundle there is a xylem and phloem. Sometimes question comes, xylem phloem are found in between which pericycle pith, pericycle endodermis, pericycle cortex or cortex hypodermis, like that question comes. If question will come, xylem phloem found between, xylem phloem are found between pericycle and pith, in between these two, the gap between pericycle and pith is occupied by xylem and phloem. Now question comes, where xylem present and where phloem present? Xylem is present towards center. Remember, in this bundle towards center means towards pith. This pith is the center. Towards pith xylem, and away from pith or towards periphery, towards pericycle is phloem. Similarly, if I will show another bundle, another vascular bundle, let here another vascular bundle is there. In this vascular bundle, where you find xylem? Recall with me, xylem is always towards pith, phloem is always towards periphery. So xylem is towards pith, phloem is towards periphery, towards outer. Similarly, another bundle I can show here, another bundle here. These are called as a vascular bundle. And always xylem is towards center, phloem is towards periphery, not upper lower. Don't remember like upper lower, center periphery, towards center xylem, towards center xylem, towards periphery phloem. And if you look at the dicot stem, we are discussing about the anatomy of dicot stem. If you look at the dicot stem, in this bundle another meristematic band is present, band of tissue is present. In between the xylem and phloem, there is a band of meristematic tissue, band of meristematic tissue. In all the bundle there is a band of meristematic tissue, band of meristematic tissue, this is the band. The band of meristematic tissue is present. Between xylem and phloem, and this band is known as a cambium or intrafascicular cambium. What it is called? It is called intrafascicular cambium. Remember it, intrafascicular cambium, very important. Intrafascicular cambium, layers already you have remembered. Intrafascicular cambium. What is the meaning of intra? Intra means inside, extra means outside. Remember this, intra means inside, extra means outside. Or inter, one is intra opposite of intra is extra or inter, not intra. Opposite of intra is inter means outside. So here you remember why here intra is written, intrafascicular cambium, because it is present inside the bundle. And now if you look here, there is a vascular bundle, first vascular bundle, this is second vascular bundle, third vascular bundle, fourth vascular bundle. If you look in between two vascular bundle, there is a permanent tissue. Already I had told you what is permanent tissue. Permanent means those who have lost the capacity of division. Those who lost the capacity of division means जो सेल का डिवीजन कैपेसिटी नहीं है उनको परमानेंट सेल बोलते हैं. एंड इन बिटवीन टू vascular bundle there is a tissue or group of cells which lost the capacity of division, and these tissue are called as a medullary ridge. Here also you have to remember what is medullary ridge. Medullary ridge. So medullary ridge are in between. The gap between two vascular bundle is occupied by medullary ridge. In between the gap in between the two vascular bundle, this gap medullary ridge, this gap is also medullary ridge, this gap is also medullary ridge, this gap is also medullary ridge. But this center is called pith. So this much at least you have to remember for the dicot stem, anatomy of dicot stem. But important question, what are the important questions directly asked in NEET? So already I had given all of you the assignment of anatomy of flowering plants. Okay, so in that one important question you will get, what is the difference
what is the difference between the stem of dicot and monocot? Stem, if you look at the stem of dicot and monocot, two stems are there, but we have discussed about the dicot. So first take the dicot stem, then we will compare with monocot. It is a very frequent question. This question already asked 1 lakh time, 1 million times in it. So what is the difference between dicot and monocot? Already dicot I have shown, no need to explain dicot again. But if we compare dicot and monocot, the main difference in the vascular bundle, this vascular bundle, xylem phloem bundle, this entire bundle, if you look at the bundle, so for dicot already I have shown. Now bring it out, take the vascular bundle to outside. Okay, in dicot vascular bundle, what you find? Towards center xylem, towards center xylem, towards periphery phloem, and in between xylem phloem there is a band of what? Meristematic tissue, which is called as intrafascicular cambium. Already we have discussed. But if you compare monocot, in case of monocot what happens? In case of monocot, there is a xylem, there is a phloem like this. Xylem is towards center, phloem is towards periphery, but there is no intrafascicular cambium, no cambium present. This is the main difference. No cambium in case of monocot. Clear? No cambium in case of monocot. So that's why there is a two type of vascular bundle. This is one type of vascular bundle, this is another type of vascular bundle. This type of vascular bundle is called as open vascular bundle. Very important. Open vascular bundle. Open, found in dicot. Direct question will come. Open vascular bundle found in which plants? Open vascular bundle found in dicot. But this type is called as a closed. This type are called as a closed. Why these are closed? One thing we can take as an example. When there is no band, they are very close. पास में बहुत पास में होते हैं इसलिए क्लोज. और एक इम्पोर्टेंट, ये क्लोज में जो नहीं है ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट डिवाइड. इट विल नॉट डिवाइड. नॉट डिवाइड मीन्स ऑलरेडी क्लोज्ड. अगर डिवीजन हो रहा है, दे आर ओपनिंग, they are dividing, they are opening, but here there is no division, no band, so that's why they are not opening, so that's why closed. But direct question will come, in case of monocot, which vascular bundle you find? Closed vascular bundle. In case of dicot, open vascular bundle. And sometime this sentence type question comes. Sentence, how this sentence type question comes? Sometimes question comes in the form of a sentence. We will take one example. For example, question will come in case of monocot. In case of monocot, which of the following is true? Xylem phloem are separated by a cambium. Xylem phloem are not separated by cambium. So answer is xylem phloem are not separated by cambium in case of monocot. So that's why it is called closed. So that's why two vascular bundle you have to remember. One is open vascular bundle, another is a closed vascular bundle. Two type of vascular bundle are found. And in addition to that, another important difference which is frequently asked, in case of monocot, there is no intrafascicular cambium. Already in the diagram I have shown, but there is a cavity. Cavity means space. There is a space close to the xylem. Close to the xylem there is a space which contain water. These are called as water containing cavities. Water containing cavity. So direct question comes, in case of monocot, what is present? In case of monocot, what is present inside the vascular bundle? In addition to xylem and phloem, water containing cavities. So remember, it is called water containing cavity. Water containing cavity. Water containing cavity, which is absent in case of dicot. So this difference very frequently asked in your NEET. There is a water containing cavity in case of monocot, but there is no water containing cavity in case of dicot. Now it is clear to all of you, I think.
Now we have completed the stem portion, anatomy of stem and anatomy of dicot and monocot. What is the difference? If you have any doubt, you can ask in your doubt comment section. Okay, I will clarify clear at the end or in the next class. Okay, so you can ask in your comment section if you have any doubt in this portion. And important thing, remember, question will come surely from this portion. Okay, what I am explaining. So that's why listen carefully. So you can take a screenshot of this. I am going to remove. Okay, or note it down in short. Completed. Now we will discuss another important part, that is called as secondary growth. This part completed. Now we will move towards next important part, that is called as secondary growth. Secondary, very important part. Secondary growth. Secondary growth. Secondary growth. What is secondary growth? Already in the very first class I had told you what is the meaning of primary and secondary growth. Still I am recalling again to all of you, what is primary growth. अगर एक प्लांट का हाइट बढ़ रहा है, हाइट, स्टेम इंक्रीजेस एंड इनसाइड द सॉइल रूट इंक्रीजेस. Inside the soil, all of you know, root increases inside the soil and stem increases outside the soil. This increase in length is called as a primary growth. What is called? It is called primary growth. Increase in height of the plant is called primary growth. Increase in height of the plant or length, we can say length. Increase in length. अगर एक प्लांट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. अगर एक प्लांट का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, डायमीटर और विड्थ और girth or width, if diameter of the plant increases, that is called as a secondary growth. This one. So secondary growth means increase in diameter of the plant. Now it is clear to all of you what is the difference between primary and secondary growth. So today we will discuss about this increase in width, how width of the plant increases, and for width of the plant increase, how width of the plant increases. For that we have to discuss or we have to keep clear concept about this dicot stem, anatomy of dicot stem, because in case of monocot the increase in diameter not takes place. Increase in diameter increase नहीं होता है किसमें, मोनोकॉट में. एक एग्जांपल दे दूं तुम लोग को. तुम्हारे घर के पास बानियान ट्री है, बानियान बरगद, एक बरगद का एग्जांपल ले जाओ, बानियान का एग्जांपल ले जाओ, बानियान नॉट बनाना, बानियान मीन्स बरगद. और एक प्लांट ले जाओ राइस प्लांट, राइस व्हीट, जो भी. ये दोनों प्लांट को कंपेयर करके बताओ किसका डायमीटर बढ़ता है. अगर राइस को देखोगे, राइस का ओनली हाइट बढ़ेगा, डायमीटर नहीं बढ़ता है. तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ मोनोकॉट. बट इफ यू लुक एट बानियान ट्री, बरगद का डायमीटर धीरे धीरे बढ़ेगा. तो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकट ओनली. तो इसलिए हमको डाइकट स्टेम को यूज करके पढ़ना पड़ेगा. तो नाउ कम टू द डिटेल कंसेप्ट ऑफ द डाइकट स्टेम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्विम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड सिंक इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. we will sink and swim together in the field of biology. So now listen carefully the important and very interesting concept about the secondary growth in case of dicot stem. In this portion I have removed all the things except the pericycle. Only pericycle को छोड़ के और सबको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया. और पेरिसाइकिल के बाहर जितने सब लेयर उनका इंपोर्टेंट इतना नहीं, इसलिए वो सब लेयर को रिमूव कर दिया. लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सब लेयर नहीं रहेंगे, वो सब लेयर है. लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ कहां पर होगा, ये पेरिसाइकिल के अंदर. पेरिसाइकिल, ओके. तो पेरिसाइकिल उसके अंदर जितने चीज वो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं. तो देखेंगे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है. When secondary growth takes place, first
this band of meristematic tissue. Already I had told you what is this band of meristematic tissue's name. Recall with me. This is called intrafascicular because it is present inside the bundle. Intrafascicular cambium. क्या बोलेंगे इसको? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. Intrafascicular cambium. And listen one thing, if you want to become a doctor desperately, definitely you will get from my lecture, definitely. जिसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने के लिए वो होगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बना के ही छोड़ूंगा. क्लियर? तो लिसन केयरफुली. तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम in between xylem and phloem, inside this bundle, this cambium is called intrafascicular cambium, and it is present from the beginning of the plant. When plant is born, at that time it is present. But when the plant reaches old, at the time of secondary growth, when the time of secondary growth starts, it is present. Intrafascicular cambium is present from the beginning. I am writing here beginning. Present from beginning. Present from beginning. Present from beginning का मतलब क्या है? It is present from the starting of plant life. But one change takes place when it reaches the secondary. When it reaches to adult. When it reaches to adult stage, what happens? The cells which are present in the medullary ridge, ये पोर्शन को क्या बताया था? medullary ridge. इसका नाम फिर से लिख दूं, medullary ridge. ये medullary ridge क्या होता है? medullary ridge who lost the capacity of division, उनका डिवीजन कैपेसिटी नहीं है. ये सब सेल का डिवीजन कैपेसिटी नहीं है. लेकिन यहां पर जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लिखा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? डिवीजन कैपेसिटी होता है. तो तुमको याद रखना है, कैम्बियम जहां पर यूज होगा, कैम्बियम वर्ड, वहां पर डिवीजन कैपेसिटी होगा. लेकिन मेडुलर रेज में डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है. फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग. दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग. बट here division capacity is present, they can divide, but here these cells cannot divide. But what happens? ये medullary range में एक चेंज आ जाता है. जैसे तुम्हारा लाइफ को मैं चेंज करके ही रहूंगा. आज से पढ़ोगे तो डॉक्टर श्योर बनोगे. तो medullary range में क्या चेंज आएगा? When it reaches adult stage, the cells which are adjacent means close to the intrafascicular cambium, means this region, the cells close to the intrafascicular cambium, I am showing in another color. These are the cells of medullary ridge. ये जो कलर में दिखाया डिफरेंट पिंक कलर में, these are the cells of medullary ridge. तो medullary ridge का सेल में एक चेंज आएगा. क्या आएगा? जो बिगिनिंग है, जो पहले से नॉन डिवाइडिंग थे, डिवीजन नहीं कर रहे थे, अभी उनका डिवीजन कैपेसिटी आ जाएगा, बैक हो जाएगा. तो प्लांट में एक प्रोसेस होता है, एक डिवीजन लॉस होने के बाद फिर से डिवीजन कैपेसिटी आ सकता है. तो ये जो डिवीजन कैपेसिटी आ गया वो हर सेल में नहीं आएगा, ओनली इंट्राफेसिकुलर का साइड में जो सेल है, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा. इंट्राफेसिकुलर का साइड में जो है, सिमिलरली यहां पर भी दिखा सकता हूं, यहां पर भी इंट्राफेसिकुलर का साइड में जो है, इंट्राफेसिकुलर का साइड में जो है, adjoining the intrafascicular cambium, the tissues adjoining the intrafascicular cambium. तो जो पिंक कलर का दिखाया वो सब मेडुलरी रेज कन्वर्टेड इनटू डिवाइडिंग. पहले जो डिवाइडिंग थे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, लेकिन पिंक में जो दिखाया वो सब मेडुलरी रेज का सेल, अभी वो डिवाइडिंग हो गए, पहले डिवाइडिंग नहीं थे. तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम भी हमको याद रखना है. उनको हम मेडुलरी रेज नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनका कैरेक्टर चेंज हो गया. तो उनको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. सेम नेम, इंट्रा था, यहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम.
तो अभी मुझे बताओ डिफरेंस क्या है, इंट्रा क्या है, इंटर क्या है। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंटर मीन्स आउटसाइड। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंटर मीन्स आउटसाइड। इंट्रा था, इंट्रा का मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब जाइलेम फ्लोएम के अंदर और बंडल के अंदर। ये था बंडल, जो टिश्यू बंडल के अंदर इंट्रा, जो टिश्यू बंडल के अंदर इंट्रा, जो टिश्यू बंडल के बाहर इंटर। फिर से बंडल के अंदर इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अभी क्या होगा, ये जो इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, ये सब कनेक्टेड होके एक रिंग बना देंगे। रिंग दिखाई देता है, रिंग एक सर्कुलर लेयर बन गया। पहले वो सर्कुलर लेयर नहीं था, पहले फ्रॉम द बिगनिंग जो दिखाया था, बिगनिंग में ओनली व्हाइट था डिसकंटिन्यूअस। बट अभी क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस लेयर हो गया। तो कंटिन्यूअस रिंग कैसे बना, कंटिन्यूअस रिंग कैसे बना मुझे बताओ। इंट्रा और इंटर को मिला के कंटिन्यूअस रिंग बना। इस रिंग को बोलेंगे कैम्बियल रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, कैम्बियल रिंग। क्वेश्चन आएगा, कैम्बियल रिंग कैसे फॉर्मेशन होता है, कैम्बियल रिंग कैसे प्रोड्यूस होता है। कैम्बियल रिंग is a ring which is produced due to combination of intra and inter fascicular cambium। क्लियर हुआ। तो इतना क्लियर होने के बाद हम आगे जाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द प्लांट, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द प्लांट। तो क्या होगा, अभी ये सर्कल का डायमीटर क्या है, डायमीटर मीन्स दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसका डायमीटर ऐसे बढ़ेगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका विड्थ ग्रोथ होगा। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा, अभी तुमको बता दिया। ये जो रिंग बन गया, रिंग इज डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। पहले जो थे नॉन डिवाइडिंग, ये सब थे मेडुलरी रेज, ये था नॉन डिवाइडिंग। तो जो रिंग बना, रिंग इज डिवाइडिंग, कैम्बियम मीन्स डिवाइडिंग। तो दिस वन इज डिवाइडिंग, दिस वन इज डिवाइडिंग, ऑल आर डिवाइडिंग। तो ऑल द डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म ए रिंग, दैट इज कैम्बियल रिंग। अभी कैम्बियल रिंग क्या करेगा, दोनों साइड को डिवाइड करेगा। कैम्बियल रिंग का एक आउटर साइड है, कैम्बियल रिंग का एक इनर साइड है। अभी मुझे बताओ, ये कैम्बियल रिंग जो देख रहे हो, कैम्बियल रिंग तो यहां पर है, दिस इज द रिंग। ये रिंग का इनर साइड है और एक आउटर साइड। इनर साइड कहां पर है, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन, दिस इज द इनर साइड, ये वाला पोर्शन आउटर साइड। तो अभी मुझे बताओ, जाइलेम फ्लोएम कौन सा साइड में है। जाइलेम इज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द रिंग। अगर देखे जाइलेम इनर साइड में था, पहले बता दिया था। तो रिंग का इनर में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इनर साइड में क्या है, इनर साइड में क्या है, रिंग का इनर साइड में जाइलेम है और रिंग का आउटर साइड में क्या है, रिंग का आउटर साइड में फ्लोएम है। तो जाइलेम इज इनसाइड, फ्लोएम इज आउटसाइड। लेकिन ये जो जाइलेम और फ्लोएम ये पहले से थे, उनको बोलते हैं प्राइमरी जाइलेम। क्या बोलूं इसको, प्राइमरी जाइलेम, क्योंकि वो पहले थे। प्राइमरी जाइलेम। और इसको क्या बोलूं, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलेम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो ये जो दोनों जाइलेम फ्लोएम थे वो पहले से थे, उनको प्राइमरी जाइलेम, प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होगा, अभी ये जो रिंग बन गया, ये रिंग अभी नया टिश्यू फॉर्मेशन करेगा, डिवाइड करके, इनर साइड को डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलेम बनाएगा, आउटर साइड को डिवाइड करके सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो यहां पर और एक डायग्राम में दिखा देता हूं, और एक डायग्राम में, लेट दिस इज द कैम्बियल रिंग। अभी कैम्बियल रिंग का इंटर नहीं दिखाता हूं, डायरेक्ट रिंग दिखा देता हूं, डायरेक्ट रिंग। दिस इज द डायरेक्ट रिंग। और इंटर दिखाने का अभी टाइम नहीं है, इंटर ऑलरेडी दिखा दिया था यहां पर डिफरेंट कलर में। तो दिस इज द कैम्बियल रिंग। ये क्या था, कैम्बियल रिंग दिखा दिया। ये कैम्बियल रिंग अभी क्या करेगा, इनर साइड को डिवाइड करेगा, क्योंकि कैम्बियम का मतलब है डिवीजन, जिसके पास डिविज कैपेसिटी है। दिस कैम्बियल रिंग विल डिवाइड इनसाइड as well as this cambial ring also divide outsides।
ये कैम्बियल रिंग आउटर साइड को भी डिवाइड करेगा, आउटर साइड को भी डिवाइड करेगा। लेकिन जब इनर साइड को डिवाइड करेगा कौन सा टिश्यू बनाएगा, बोलो जल्दी बोलो। तो इनर साइड को जब डिवाइड करेगा, इनर साइड को जब डिवाइड करेगा एक टिश्यू बनाएगा, आउटर साइड को जब डिवाइड करेगा और एक टिश्यू बनाएगा, जो डायग्राम में दिखा दिया। आउटर साइड में फ्लोएम था, इनर साइड में जाइलम था। तो अभी ये डिवीजन करके इनर साइड को जो बनाएगा, इनर साइड ऑफ द रिंग, इनर साइड ऑफ द रिंग में जो बनेगा उसको सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी पहले था, अभी जो बन गया उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो रिंग का सेंटर में, ये था रिंग था, रिंग का सेंटर में जो मिलेगा, रिंग का कोर में, इनर नॉट सेंटर, इनर साइड में जो मिलेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। और रिंग का बाहर में जो मिलेगा, ये तो रिंग था, रिंग का बाहर में जो मिलेगा, कैम्बियल रिंग का बाहर में जो मिलेगा, बाहर आउटर साइड, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ओनली याद रखना, secondary xylem towards inner side, secondary phloem towards outer side, and this secondary xylem is also called as a wood. Phloem is not called as a wood, only secondary xylem is called as a wood. जो phloem बनेगा बाहर को बनेगा, जो xylem बनेगा सेंटर को बनेगा, towards the center, towards the inner side. तो you have to remember, inner side when secondary growth takes place, inner side को secondary xylem होता है, आउटर साइड को सेकेंडरी फ्लोएम होता है। इतना याद रख लो, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, मैं पहले भी बता दिया। जाइलम टुवर्ड्स सेंटर, फ्लोएम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो रिंग का सेंटर को भी जाइलम प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी जाइलम, और रिंग का बाहर को सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन इस सेकेंडरी जाइलम का और एक नेम तुमको याद रखना पड़ेगा, वुड। जो वुड यूज करते हो, वुड हमारा वुड में बहुत सारे फर्नीचर बनाया जाता है, तो ये सब वुड कहाँ से आता है, सेकेंडरी जाइलम। तो नाउ important thing you have to remember, I am going to tell you one important thing, so which is frequently asked in NEET UG. What is that important thing? Here we have discussed this ring can divide towards inner side as well as outer side. रिंग का डिवीजन कैपेसिटी है। रिंग को और एक बार यहां पर दिखाता हूं, रिंग कैन डिवाइड टुवर्ड्स इनर, रिंग कैन डिवाइड टुवर्ड्स इनर साइड एज वेल एज रिंग कैन डिवाइड टुवर्ड्स आउटर साइड। वो रिंग आउटर को भी डिवाइड करेगा, आउटर को भी डिवाइड करेगा, इनर को भी डिवाइड करेगा। लेकिन देखा गया द एक्टिविटी डिवीजन कैपेसिटी इज मोर टुवर्ड्स इनर साइड। तुमको याद रखना पड़ेगा, इसलिए लार्ज एरो मार्क दिखाया, यहां पर स्मॉल एरो मार्क दिखाया। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग इज मोर टुवर्ड्स इनर साइड देन आउटर साइड। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग is more towards inner, towards inner than outer। ये सिंबल बताया, ज्यादा इनर में होता है, इनर, more towards inner than outer। तो अगर एक कैम्बियल रिंग इनर को ज्यादा डिवाइड करेगा, आउटर को बहुत कम डिवाइड करेगा, तो which tissue will form more? राइट इन कमेंट सेक्शन, जल्दी बताओ। अगर एक कैम्बियल रिंग इनर को ज्यादा डिवाइड करेगा, आउटर को कम डिवाइड करेगा, तो कौन सा टिश्यू ज्यादा फॉर्मेशन होगा, कौन सा टिश्यू? ऑप्शन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, बोथ। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, बोथ। व्हिच वन? जल्दी। इनर साइड को ज्यादा डिवाइड करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? ज्यादा फॉर्मेशन होगा। इनर साइड को अगर ज्यादा डिवाइड करेगा, ज्यादा फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी जाइलम, दिस वन। तो सेकेंडरी जाइलम, तो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी एक क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में ज्यादा टिश्यू कौन सा फॉर्मेशन होता है? व्हिच टिश्यू इज फॉर्म मोर? दैट इज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम इज वेरी लेस, इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कभी कभी फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बहुत कम। तो सेकेंडरी जाइलम इज मेनली प्रोड्यूस, तो सेकेंडरी जाइलम को
वुड बोलते हैं। सेकेंडरी जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड। क्लियर हुआ? तो अभी सेकेंडरी ग्रोथ का ये है कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट कैसे डायमीटर इंक्रीज होगा। तो डायमीटर इंक्रीज होगा कि नहीं अभी बताओ। ये अगर इनसाइड को डिवाइड करेगा, इनसाइड में क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, आउटसाइड में क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ऐसे सर्कल बढ़ेगा तो डायमीटर तो बढ़ेगा ना, या घटेगा? तो बढ़ेगा। तो इसलिए डायमीटर इंक्रीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लेयर्स। सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी ग्रोथ इज नथिंग इंक्रीज इन विड्थ और डायमीटर ऑफ द प्लांट। लेकिन ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट अगर हाई टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट में अगर लो टेम्परेचर है, ये सब चीज अफेक्ट करेगा ये डिवीजन कैपेसिटी को। हम तो बोल दिया क्या, इनर साइड को ज्यादा डिवाइड करेगा, लेकिन इनर साइड को ज्यादा डिवाइड करेगा ठीक है, कितना रेट में डिवाइड करेगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। थोड़ा देखेंगे। तो इससे पहले तुम सब स्क्रीनशॉट ले जाओ इसका, जितना समझाया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस such that you can refer at the end. ओके, तो अभी आगे जाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? कमेंट सेक्शन में बताओ। क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यस और नो। और ज़्यादा चाहते हो तो बता सकते हो, सर और ज़्यादा चाहिए। तो अभी डिस्कस करेंगे कि हाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंट, हाउ एनवायरमेंट affects the secondary xylem formation during secondary growth. Environment, if you look, two important regions of earth, one is tropical, another is temperate. तो अर्थ का बहुत सारे जोन है। अर्थ का जो ए वाला पोर्शन है उसको इक्वेटर बोलते हैं, इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये पोर्शन को ट्रॉपिकल रीजन, ये पोर्शन को टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट, ऐसा नो। और टेम्परेट रीजन में क्या होता है, टेम्परेट रीजन, इन द टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट इज नॉट यूनिफॉर्म। क्लाइमेट इज नॉट यूनिफॉर्म मीन्स कभी कभी ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, कभी कभी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर कभी कभी हाई हो जाता है, टेम्परेचर कभी कभी लो हो जाता है। तो इन टेम्परेट कंडीशन विल डिस्कस टेम्परेट environment. Which environment? Temperate environment. Temperate in temperate condition, and in temperate condition mainly two season will discuss. Two seasons, different seasons are there, and all of you know the cold season is called winter. Cold season is winter, and the high temperature season is called spring. समर बोलते हैं, स्प्रिंग भी। तो स्प्रिंग टाइम में, अगर स्प्रिंग और विंटर ये दोनों सीजन को कंपेयर करेंगे तो हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, लो टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, कंपैरिजन करो। अभी मुझे मत बताओ कि यहाँ पर समर क्यों नहीं लिखा। समर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि तुम्हारा जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, साइंटिस्ट लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वो स्प्रिंग सीजन में किए हैं, क्योंकि स्प्रिंग और विंटर सीजन में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है डिवीजन कैपेसिटी में। तो तुमको याद रखना है स्प्रिंग विंटर, सारे के सारे सीजन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अभी मुझे बताओ टेम्परेचर कहाँ पर हाई होगा, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंस आता है स्प्रिंग में क्या होगा, विंटर में क्या होगा। स्प्रिंग सीजन में टेम्परेचर हाई, विंटर सीजन में टेम्परेचर लो, ठंड पड़ जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद हम आगे जाएंगे। तो मुझे बताओ
तुम्हारा एक्टिविटी घर में पढ़ाई करते हो या घर में जो भी एक्टिविटी करते हो, ज़्यादा एक्टिविटी तुम्हारा हाई टेम्परेचर टाइम में होता है या लो टेम्परेचर टाइम में होता है? ज़्यादा एक्टिविटी हाई टेम्परेचर टाइम में होता है। लो टेम्परेचर टाइम में क्या होता है, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ठंड पड़ जाता है, तो तुम सब चादर के अंदर रह जाते हो छुपाने के लिए बड़ी को। तो इसलिए तो टेम्परेचर जब कम रहेगा एक्टिविटी घट जाएगा। ये वाला चीज़ याद रखना होगा। When there is a low temperature, activity is less। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं। तो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ? एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे तुम्हारा विंटर टाइम में पढ़ाई घट जाता है, ज़्यादा सोना हो जाता है, सो जाते हो ज़्यादा, तो एक्टिविटी कम हो जाता है। सिमिलरली ये जो एक्टिविटी लिखा, किसका एक्टिविटी? कैम्बियल रिंग का एक्टिविटी। तो अभी क्वेश्चन आएगा, कैम्बियल रिंग इज मोर एक्टिव इन व्हिच सीजन? तो कैम्बियल रिंग इज मोर एक्टिव, कैम्बियल रिंग मोर एक्टिव, कैम्बियल रिंग इज लेस एक्टिव। कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बायोलॉजी तुमको याद रखने का जरूरत नहीं, ओनली मेरे साथ अच्छे से सुनो। तुमको स्विम करवाऊंगा, ओके? समुद्र में तुम स्विम करोगे बायोलॉजी के फील्ड में, कोई भी डाउट नहीं रहेगा बायोलॉजी में। तो कैम्बियल रिंग इज मोर एक्टिव व्हेन हाई टेम्परेचर स्प्रिंग, कैम्बियल रिंग इज लेस एक्टिव इन विंटर व्हेन टेम्परेचर इज लेस। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी मुझे बताओ, हम डिस्कस किए थे कैम्बियल रिंग ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा था, जाइलेम या फ्लोएम? बता दिया था सेकेंडरी जाइलेम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, सेकेंडरी जाइलेम। तो अभी मुझे बताओ ज़्यादा सेकेंडरी जाइलेम कब होगा? अगर स्प्रिंग देखेंगे, विंटर देखेंगे, स्प्रिंग में ज़्यादा एक्टिव तो मोर सेकेंडरी जाइलेम, मोर amount of secondary xylem, here less amount of secondary xylem। लास्ट क्लास बताया था जाइलेम के अंदर 4 सेल होते हैं, ट्राकिड्स, वेसल्स, जाइलेम, पैरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर। क्लियर हो रहा है? ट्राकिड्स, वेसल्स, जाइलेम, पैरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर। और ये चारों से ट्राकिड्स, वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वेसल वेरी इंपॉर्टेंट इज वेसल। थोड़ा वेसल को देखेंगे तो यहां पर देखें मोर सेकेंडरी जाइलेम, लेस सेकेंडरी जाइलेम, लेकिन जाइलेम हो रहा मीन्स वेसल होगा। तो वेसल कैसे दिखाई देता है? वेसल इज ए सिलिंड्रिकल। ये जाइलेम के अंदर जो वेसल होता है वो एक सिलेंडर जैसा ऐसे दिखाई देगा तुमको, सिलेंडर। तो सिलेंडर दिखाई दिया, दिस इज द वेसल। क्लियर? लेकिन डिफरेंस क्या? स्प्रिंग में जो वेसल होगा, विंटर में जो वेसल होगा, वो दोनों में डिफरेंस। ए वाला वेसल दिखाया स्प्रिंग में, थोड़ा विंटर को चले जाएंगे, विंटर में क्या होगा? वेसल ऐसे हो जाएंगे। तो डिफरेंस देख के बताओ। इन विंटर, इन स्प्रिंग टाइम द वेसल्स आर हैविंग वाइड लुमेन, vessels with wide lumen, wide, more diameter, wide lumen, but these are with vessels with narrow lumen, vessel with narrow lumen। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, narrow lumen, lumen मीन्स स्पेस, इसके अंदर का स्पेस बहुत छोटा है। ओके, तो अभी तो डायरेक्ट क्लियर हो गया स्प्रिंग और विंटर में क्या क्या होगा चेंज। Okay, dear students, you have
tried to comment, but it is not reached at me due to some server problem. It will sort out very soon in the next class. But you write your comment, we'll discuss in the next class. Okay. तो स्प्रिंग और विंटर में क्या क्या डिफरेंस आएगा? स्प्रिंग में मोर एक्टिव, विंटर में लेस एक्टिव. कुछ रटने का जरूरत नहीं. मोर जाइलेम, लेस जाइलेम, मोर सब ज़्यादा चीज़, जितने ज़्यादा सी चीज़ स्प्रिंग में होगा, जितने लेस चीज़ सब विंटर में होगा. तो ज़्यादा डायमीटर वाइड लुमेन, लेस डायमीटर इन द विंटर टाइम, ये सब चीज़ रहेगा. तो स्प्रिंग और विंटर टाइम में क्लियर. तो अभी मुझे बताओ, तो जो सेकेंडरी जाइलेम होगा, सेकेंडरी जाइलेम का अदर नेम था वुड. तो स्प्रिंग में जो वुड बनेगा, विंटर में जो वुड बनेगा, ये सब डिफरेंस को डिस्कस करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये वुड थोड़ा ये वुड से डिफरेंट रहेगा. तो इसलिए साइंटिस्ट लोग ये स्प्रिंग में फॉर्मेशन होने वाला वुड को और एक नाम दे दिए. क्या नाम दे दिए? स्प्रिंग वुड और ईयरली वुड. जो सेकेंडरी जाइलेम स्प्रिंग टाइम में होगा उसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड और ईयरली वुड. और जो वुड विंटर में होगा उसको बोलते हैं ऑटम वुड. ऑटम वुड और लेट वुड. ऑटम वुड और लेट, ये दो वुड याद रखना पड़ेगा. स्प्रिंग वुड और ईयरली वुड, ऑटम वुड और लेट वुड. क्वेश्चन आता है ऑटम वुड कौन सा सीजन में होता है, ऑटम या विंटर? दोनों, ऑटम या विंटर, ये दोनों में जो वुड होगा ऑटम वुड्स या लेट वुड्स. क्लियर. सो दो वुड फॉर्मेशन हो गया. लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो बता दिया. इसके बाद और बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि कलर, डेंसिटी. एक क्वेश्चन आ जाता है डेंसिटी. तो ये दोनों वुड में डेंसिटी किसका ज़्यादा आएगा, डेंसिटी किसका कम आएगा? अगेन कुछ रटने का ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ, रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं. तो डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो अभी मुझे बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? ये वेसल, ये भी वेसल है. ये दोनों वेसल में वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है. तो वॉल्यूम ज़्यादा इस वेसल का, तो डेंसिटी कम रहेगा. तो लिख सकता हूँ इन स्प्रिंग वुड लो डेंसिटी. क्या होगा? लो डेंसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लो डेंसिटी, रटने का जरूरत नहीं. ज़्यादा, सब ज़्यादा होगा लेकिन डेंसिटी कम होगा. क्यों डेंसिटी कम होगा? यहाँ पर ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, ज़्यादा सेकेंडरी जाइलेम हो रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया इसलिए डेंसिटी घट गया. क्लियर. और ऐसे मत बोलना कि सब बढ़ रहा है मीन्स डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा. तो लो डेंसिटी बट ऑपोजिट लेस वॉल्यूम देयर इज हाई डेंसिटी. Low density in this sides, high density in this sides. And next is color. The low density, वो लो डेंसिटी मीन्स ज़्यादा वॉल्यूम, तो पैक ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए लो डेंसिटी लाइट कलर आ जाएगा. द स्प्रिंग वुड आर लाइट इन कलर क्या आएगा? लाइट कलर. एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, हमेशा फॉर्मूला बताता हूँ. तो स्प्रिंग साइड में हमेशा एल में आएगा, जो आएगा एल से लो डेंसिटी, एल से लाइट कलर, लार्ज डिवीजन, लार्ज सेकेंडरी जाइलेम, लार्ज अमाउंट सेकेंडरी जाइलेम, लार्ज वेसल्स मीन्स वाइड वेसल. तो सब एल में होंगे. तो एक फॉर्मूला याद रख लोगे, स्प्रिंग साइड में सब एल में आएगा. लो डेंसिटी, लाइट कलर, लार्ज, मोर मीन्स लार्ज प्रोडक्शन, लार्जली एक्टिव, लार्ज अमाउंट, लार्ज नॉट मोर, लार्ज अमाउंट. ये सब ऐसे याद हो जाएगा. लेकिन विंटर साइड में सब क्या होगा? इसका ऑपोजिट. सब लार्ज याद हो गया, इसका ऑपोजिट कर दोगे विंटर साइड में. तो लेस एक्टिव, एल मीन्स लेस does not means you have to remember L in that side means all are large.
इसके इसके जगह लेस मत लिखना, ओके। तो फॉर्मूला लार्ज, यू हैव टू रिमेंबर लार्ज, एल मीन्स लार्ज दैट साइड, एंड हियर ऑल आर लेस, ओके, ऑल आर लेस. So that's why less active, less amount, less. You can write a small. Large opposite is small. Small active, small amount of xylem, small vessel, and there is high density. तो हाई डेंसिटी के लिए उनका कलर क्या जाएगा? यहाँ पर कलर लिखा था, कलर लाइट कलर था, यहाँ पर आ जाएगा डार्क कलर. दीज आर डार्क कलर, डार्क कलर. तो ऑटम वुड सब डार्क कलर वाले हो जाएंगे. These are light color, low density, dark color, high density. So this is all about difference between spring wood, autumn wood. बहुत important, ये वाला portion बहुत important. Every year you will get one question from this portion. तो हम अभी 2 wood complete किए, spring wood, autumn wood. तो अभी तुम इसका screenshot ले सकते हो, or you can write in short. Okay. तो अभी नेक्स्ट पोर्शन को जाएंगे. अभी क्लियर हो गया स्प्रिंग वुड और विंटर वुड, ऑटम वुड. अभी मुझे बताओ, एक साल में इन 1 ईयर हाउ मेनी स्प्रिंग कम्स, हाउ मेनी विंटर, हाउ मेनी स्प्रिंग, हाउ मेनी विंटर इन 1 ईयर, इन 1 annum. In 1 year 1 spring comes, 1 winter comes, not 2. Every season comes only once in a year. So this spring and winter. So that's why in 1 year you find one light color wood, one dark color wood. ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसा नो? Am I correct? एक साल में तुमको एक लाइट कलर वुड मिलेगा, एक डार्क कलर वुड मिलेगा, क्लियर. और एक लाइट डार्क को कंबाइन करके हम बोलेंगे एनुअल रिंग और ईयरली रिंग, क्योंकि ये सब रिंग जैसा फॉर्मेशन होते हैं. दिखा देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा. ये लाइट क्या है, डार्क क्या है. कभी कभी अगर देखे होंगे रोड के साइड में जाते हुए, कभी प्लांट का कटा हुआ पोर्शन रखा होगा, कहाँ पर देखोगे बहुत सारे सर्कुलर रिंग होता है. स्टेम, आफ्टर कटिंग द स्टेम यू फाइंड सर्कुलर रिंग्स. कुछ लाइट कलर रिंग मिलेंगे, कुछ डार्क रिंग भी मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे. तो यहां पर दिखाता हूं. लेट दिस इज द कैम्बियल रिंग. कैम्बियल रिंग ये क्या है? कैम्बियल रिंग. कैम्बियल रिंग कैसे बनाया था बता दिया. कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलके इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ये वुड जो बताया. स्प्रिंग सीजन में लाइट कलर, डार्क सीजन में, विंटर सीजन में डार्क कलर. तो पहले लेट एक डार्क कलर फॉर्मेशन हो गया, पहला सीजन आ गया विंटर. सेकेंडरी ग्रोथ करने के टाइम में विंटर था, तो विंटर में क्या होगा, डार्क कलर वुड आ जाएगा. ये डार्क कलर वुड को क्या बोलेंगे, ऑटम वुड. ऑटम वुड. विंटर के बाद फिर से आएगा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में क्या होगा, लाइट कलर वुड. यहां पर लाइट दिखा देता हूं डॉटेड लाइन में, लाइट कलर वुड. तो ये वाला आ जाएगा स्प्रिंग वुड. तो स्प्रिंग वुड आ गया, ऑटम वुड आ गया. ये दोनों एक साल में आएंगे, तो एक साल में तुमको 2 क्लोज रिंग मिलेंगे, एक डार्क, उसके साइड में एक लाइट, और ये दोनों को मिला के बोलते हैं एनुअल रिंग. एनुअल रिंग क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग. तो एनुअल रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिंग, 1 डार्क 1 लाइट. क्यों इसको एनुअल रिंग बोले, क्योंकि एक साल में दोनों सीजन आते हैं एक ही साल में, तो 2 रिंग मिलेगा. नेक्स्ट ईयर क्या होगा,
नेक्स्ट ईयर फिर से और एक डार्क आ जाएगा और एक लाइट, थर्ड ईयर में और एक डार्क और एक लाइट और एक डार्क और एक लाइट। तो इसको तुम काउंट करोगे तो तुमको ईयर भी पता चल जाएगा कितना ईयर वो डायमीटर बढ़ाया है। इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जो बोल देते हैं कि दिस प्लांट इज 1000 ईयर ओल्ड, दिस प्लांट इज 100 ईयर ओल्ड, ये वो जमाने में था, वो प्लांट वो जमाने में था, ये जमाने में था, ये सब ये रिंग को काउंट करके बोलते हैं। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन आया था एनुअल रिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। एनुअल रिंग हेल्प्स, एनुअल मीन्स ईयर, 1 ईयर, एनुअल रिंग हेल्प्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ द प्लांट। एनुअल रिंग से क्या पता चल जाएगा, एज ऑफ प्लांट, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट कैन बी एस्टिमेटेड, approximate age of the plant can be estimated by counting the number of annual rings, and this branch is called as a dendrochronology. Dendrochronology, what is dendrochronology? It is a branch of biology. Dendrochronology is a branch of biology where we will study the age of plant by counting the number of annual rings. क्लियर। और एनुअल रिंग कैसे बनता है, एक लाइट रिंग, एक डार्क रिंग और एक स्प्रिंग वुड, एक ऑटम नोड को मिला के, तो वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट बाय काउंटिंग दिस नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ओके, सो दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I think it is clear to all of you. Now you can take a screenshot of this or write it. Okay.